الذي قدرنا في سابق العلم والإحسان رب العالمين في الدنيا بنعمة الألوان الرحمن الرحيم علينا في القبور وسكرات الموت بالبشارة والإيمان مالك يوم الدين يحكم بالعدل والبرهان إياك نعبد حق المعبودية في كل حين وأوان وإياك نستعين على جميع الأعداء من الجن والإنس والنفس والشيطان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار خود پاک محبت کے ساتھ تلاوت فرمائیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اے خدا نور سے تابہ میرا گلشن کر دے اے خدا نور سے تابہ میرا گلشن کر دے میری مٹی میں ہے ظلمت اسے روشن کر دے میرے سب شہر ہو روشن کسی سورج کی طرح میرا ہر گاؤں کسی چاند کا مسکن کر دے میرے جوانوں کو دے قائد سی جوانی یا رب میرے بچوں کا تو اقبال سا بچپن کر دے سرسبز کھیت میرے ہوں میرے پرچم کی طرح زرد فصلوں کو عنایت ہرا جوبن کر دے نفرتوں سے بچا لے میرے دیس کو یا رب نفرتوں سے بچا لے میرے دیس کو یا رب عرض واصف کو محبت کا نشیمن کر دے میری صبح ابتدا ہو تیری حمد کرتے کرتے میری شام انتہا ہو تیری حمد کرتے کرتے میں مریض ناتوا ہوں تو طبیب کامراں ہے میری درد کی دوا ہو تیری حمد کرتے کرتے تو سبھی کا رازداں ہے میرے راز راز رکھنا تو سبھی کا رازداں ہے میرے راز راز رکھنا میری ادنا التجا ہے تیری حمد کرتے کرتے در بدر مدحت سرکار سناتا ہوا میں اپنی بخشش کا ہوں سامان بناتا ہوا میں آپ فرماتے ہوئے کون سنائے گا مجھے نعت آپ فرماتے ہوئے کون سنائے گا مجھے نعت دور جوتوں میں کھڑا ہاتھ ہلاتا ہوا میں قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار آج پہلی دفعہ اپنے برادر مکرم بھائی محمد ابرار صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ ہم سبھی کا آنا مل بیٹھنا سننا اور سنانا قبول فرمائے مجھ سے قبل ملک پاکستان کی خوبصورت بہترین آوازوں نے آپ کے سامنے ہدیہ نعت بھی اللہ کے حضور حمد بھی جناب نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت بھی اور صحابہ اکرام کی بارگاہ میں منقبت بھی پیش کی ہے اتنی ترنم والی آوازوں کے بعد
मुझे जैसे बेसुरे को सुनना यकीनी बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा इंतहाई मुख्तसर वक्त में कोई दो जुमले, कोई दो बातें आप हजरात के सामने दे सकूं। मेरा एक अपना मिजाज है, जहां भी जाता हूं खत्म नबूवत की आवाज़ ज़रूर लगाया करता हूं। और मैंने अपने मुशाहिदात में ये बात देखी है और बारहा दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऐसी महाफिल में बैठकर दुआएं कबूल होती अपनी आंखों से देखी हैं। इसी उम्मीद, इसी यकीन के साथ खत्म नबूवत का नारा, यहाँ से मेरा बच्चा कोई लगाए, बेटा खत्म नबूवत का नारा लगाओ जरा जोर से, कोई भी लगा दे, ताजदारे खत्म नबूवत। आपने ये बच्चों को सबक देना है, इन्हीं बच्चों को, कि हमारे बड़े ये नारा लगाते थे। कोई कुरान और सुन्नत से हट के बात नहीं है, मोहब्बत के साथ नारा लगाइएगा। मेरा भाई नारा लगवा रहा है, आवाज दीजिएगा खत्म नबूवत की। अल्लाह जो मोहब्बत के साथ जवाब दे, आका की शिफात का हकदार ठहरे। लगाइएगा भाईजान। मेरे भाई मौलाना नईमुर रहमान कसूरी साहब हम और नाज से ही बात को चला रहे थे। कोई बना बनाया मौजू नहीं है, मैं टूटी फूटी बातें आप हजरात की समातों की नजर कर देता हूँ। हम खालिके लम यजल की होती है, नात अफजलुल बशर की होती है, हम रब्बुल आलमीन की होती है, नात रब्बुल आलमीन के महबूब रहमतुल लिल आलमीन की होती है, नात रहमतुल लिल आलमीन की, और हम खुदा की होती है। अगर आप मुताला करके देखें, नात वाला भी बेमिसाल, हम्द वाला भी बेमिसाल, हम्द वाला भी बाकमाल, नात वाला भी बाकमाल, हम्द वाला भी लाजवाल, नात वाला भी लाजवाल। हम्द वाले को भी जवाल कोई नहीं, नात वाले को भी जवाल कोई नहीं। हम्द वाला भी लारैब है, नात वाला भी लारैब है। जिसकी हम्द बयान होती है उसमें भी कोई ऐब नहीं है, जिसकी नात होती है उसके भी कोई ऐब नहीं है। आप पूछेंगे मौलाना बड़ी अजीब बात है, हम्द वाला भी बेऐब, नात वाला भी बेऐब, हम्द वाला भी लाजवाब, नात वाला भी लाजवाब, हम्द वाला भी बाकमाल, नात वाला भी बाकमाल। फिर इनमें फर्क क्या हुआ? मेरा अकाबिरीन का ये अकीदा है, वो भी बाकमाल है, ये भी बाकमाल है, वो भी लाजवाल है, ये भी लाजवाल है। उसका भी सानी कोई नहीं, इसका भी सानी कोई नहीं। वो भी आला, ये भी आला, वो भी बाला, ये भी बाला। उसका भी सानी कोई नहीं, इसका भी सानी कोई नहीं। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है, वो बनाने वाला है, ये बनने वाला है, वो चलाने वाला है, ये चलने वाला है। वो बनाने में बेमिसाल, ये बनने में बेमिसाल, वो चलाने में बेमिसाल, ये चलने में बेमिसाल। वो खालिक बेमिसाल, ये मखलूक बेमिसाल। ऐब उसमें भी कोई नहीं, ऐब इसमें भी कोई नहीं, वो भी बेमिसाल है। हमारा अकीदा सुनिएगा, जो सारी कायनात में मौजूद है उसे खुदा कहते हैं, जो अम्मा आयशा के हुजरे में मौजूद है उसे मुस्तफा कहते हैं। वो भी बेमिसाल है, ये भी बेमिसाल है। अल्लाह वो है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह का तारुफ करवाया रहमतुल लिल आलमीन ने। औराक को उल्टा के देखिए, आपको नजर आएगा आलमे अरवा का मंजर नजर आएगा। आलमे अरवा के अंदर सारी रूहें मौजूद हैं। सारी रूहों को इकट्ठा करने के बाद मेरे अल्लाह ने, रब्बुल आलमीन ने, खल्लाक आलम
ने, रब्बुस समावाति वल अर्ज़ ने सारी रूहों से सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? मेरे आका आमीना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, शाफिए माशर, हादिए आलम, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, बलगल उला, कशफत दुजा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बला क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे मुश्किल कुशा हैं। अल्लाह का तारुफ मेरे आका करवा रहे हैं। आप ही हमारे मुश्किल कुशा हैं, आप ही हमारे हाजत रवा हैं, आप ही हमारे रब हैं। खुशियां देने वाले आप हैं, रिस्क देने वाले आप हैं, बेटे देने वाले आप हैं, बेटियां देने वाले आप हैं, कारोबार में बरकतें देने वाले आप हैं, कारोबार को खत्म करने वाले आप हैं, जिंदगी में सुकून देने वाले आप हैं, अल्लाह का तारुफ करवाने वाली सबसे पहली शख्सियत का नाम आमीना का दुर्रे यतीम है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। फिर तालिब इल्म को अपने ज़ौक़ में कहने दीजिए ना, आदम को नबुव्वत मिली, हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए, आकर आका का अल्लाह का तारुफ करवाते हैं। आदम अल्लाह का तारुफ करवाए, फैजान मेरे आका का है। हजरत नूह दुनिया में तशरीफ लाए, आकर अल्लाह का तारुफ करवाए, फैजान मेरे आका का है। हजरत यहया दुनिया में आए, तारुफ मेरे अल्लाह का करवाए, फैजान मेरे आका का है। हजरत इब्राहिम दुनिया में आए, तारुफ मेरे आका मेरे अल्लाह का करवाए, फैजान मेरे आका का है। हजरत इसहाक दुनिया में आए, तारुफ मेरे अल्लाह का करवाए, फैजान मेरे आका का है। हजरत यहया दुनिया में आए, फैजान मेरे आका का है। सारे अंबिया दुनिया में आने के बाद अल्लाह का तारुफ करवाए, फैजान मेरे आका का है। सबसे पहले आलम अरवा के अंदर जिसने तारुफ अल्लाह का करवाया मेरे आका है। सिर्फ वहीं तक बात नहीं रुकी, मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में तशरीफ लाने के बाद कोई भी बच्चा दुनिया में आए वो आकर रोता है, उसके कान में तौहीद की आवाज सुनाई देती है, उसको अजान सुनाकर बताया जाता है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है बताया जाता है। लेकिन जब आका दुनिया में आए, आका ने आकर दुनिया में आकर आका रोए नहीं। आलम अल्लामा बदरे आलम मीठी लिखते हैं, जब आका दुनिया में तशरीफ लाए, सर को सजदे में रखा, तीन कलिमात कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो मुझे अपने ज़ौक़ में कहने दीजिए, जब आका दुनिया में तशरीफ लाए, जमीन तौहीद सुनने के लिए बेताब थी, आसमान तौहीद सुनने के लिए बेताब था, सितारे तौहीद सुनने के लिए बेताब थे, जंगल पहाड़ तौहीद सुनने के लिए बेताब थे। आका दुनिया में आए, आका को बताना नहीं पड़ा, बल्कि आका ने दुनिया में आकर बताया अल्लाहु अकबर। आका दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले आका ने जो तारुफ करवाया, किसका करवाया? बोलिए बोलिए, जो सुनना चाहते हैं मैं उस तरफ भी आ रहा हूं। सबसे पहले आका ने किसका तारुफ करवाया? सबसे पहले दुनिया में आए, आकर जो तारुफ करवाया अल्लाह का करवाया। किस तरह? मेरे आका के आने से पहले का मंजर यूं था, यूं ही कहकशां के थे दिलकश नजारे, यूं ही थे ये मंजर हंसी प्यारे प्यारे, फलक के थे नापैद यूं ही किनारे, यूं ही चांद था चरख पर जगमगाता, उसी दहर में तैर कर डूब जाता, यूं ही सुबह होती थी नितमो अंधेरे, निकलता था सूरज शुआएं बिखेरे, बदलते थे दिन रात यूं ही बसेरे, यूं ही सिलसिला गर्दिशों का था जारी, कभी रात की थी कभी दिन की बारी, यूं ही सिलसिला गर्दिशों का था जारी। अरब थे जहालत में मुमताज सबसे, थे बेगाना तहजीब और इल्म और अदब से, बसाया था काबा बुताने अरब से, अलहदा अलहदा कबाइल के रब थे, ये मोहताज उनके वो हाजत रवा थे, ये मोहताज उनके वो हाजत रवा थे। फिर हुआ क्या? फिर हुआ क्या? अचानक लगा मांद होने अंधेरा, अचानक लगा मांद होने अंधेरा, जियाओं से पुरनूर चमका सवेरा, जमाने में वो इनकलाब आ गया है, नबूवत का आफताब आ गया है। अब बदलते रहेंगे हजारों जमाने, अब बदलते रहेंगे हजारों जमाने, मगर अब इबादत खुदा ही की होगी, नबूवत सदा मुस्तफा ही की होगी। बदलते रहेंगे
हजारों जमाने, मगर अब इबादत खुदा ही की होगी। नबूवत सिर्फ मुस्तफा ही की। बोलिए नबूवत सिर्फ। अब दुनिया में मेरे आका तशरीफ ले आए। जब दुनिया में तशरीफ लाए, सबने देखा, अपनों ने भी देखा, गैरों ने भी देखा। मंजर कशी कर रहा हूँ। जब मेरे आका को अपनों ने देखा तो हजरत हसन लब कुशा होते हैं। हजरत हसन कहते हैं व अहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तल दिन निसाओ। मेरे आका आप जैसा तो किसी को अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। मैं अपने ज़ौक़ में तर्जुमा करूं तो यूं कहूंगा, मेरे आका के बारे में हजरत हसन कहते हैं, आका मुझे यूं लगता है जैसे अल्लाह से पूछ पूछ कर बनाते गए। मेरी माँ आयशा सिद्दीका लिखती हैं, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा। ये तो 1400 साल पहले की बातें हैं। लाहौर में बैठे सैयद नफीसुल हुसैनी नव्वरल्लाहु मरकदहू का कलम हरकत में आया तो यूं लिखते हैं, ए रसूल अमी खातमुल मुरसली, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ए असल के हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। अपने तो अपने, गैर लब कुशा हुए तो यूं लिखते हैं, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिद है कि वल फजर की आया के अमी है, गैसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कदर खुली है, गर्दन है कि बर फर्क जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। सुनिएगा, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। सुनिएगा, मैं अपने अकीदे अपनी तर्जुमानी कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत पर। मिलाद पे आए हो ना भाई। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, महताब के टुकड़े तेरी झोली में गिरे हैं। अपनों ने तो देखा, जब गैरों ने देखा तो लब कुशा हुए। आज एक बदबख्त उठता है, वो कहता है तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मेरे आका के बारे में लोग ऐसा नजरिया रखते हैं। तुझे गलत बताया गया, तूने गलत बयानी की कि मेरे आका के बारे में लोग ऐसा अकीदा रखते हैं। गैरों को सुन। एक पंडित लिखता है, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने जर्रों को मिलाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। मेरे आका दुनिया में आए, हसीन इतने, हसीन इतने, अपने तो अपने तारीफ करने वाले बनते हैं, गैर तो गैर वो भी तारीफ करते हैं। अल्लाह ने मेरे आका को नाम ही ऐसा दिया जिसका मानी है जिसकी तारीफ की जाए। अगर देखा जाए, अल्लाह ने मेरे आका को जो नाम दिया वो तारीफ वाला, अल्लाह ने मेरे आका को तारीफ वाला बनाया। नाम ऐसा दिया जो काबिले तारीफ, काम ऐसा जो काबिले तारीफ। अल्लाह ने मेरे आका को जो जिंदगी दी वो काबिले तारीफ। आका मेरे जिस शहर में आए वो काबिले तारीफ, जिस शहर में रहते हैं वो काबिले तारीफ। आका बदर में जाए काबिले तारीफ, आका अहद में जाए काबिले तारीफ, आका इशारा करे चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए काबिले तारीफ, आका चांद की तरफ इशारा करे चांद टुकड़ों में तकसीम हो जाए काबिले तारीफ। आका अबू हुरैरा की माँ की हिदायत के लिए दुआ करे, अबू हुरैरा घर न पहुंचे, हिदायत पहले पहुंच जाए काबिले तारीफ। आका के साथ अबू बकर लग जाए काबिले तारीफ, उमर लग जाए काबिले तारीफ, उस्मान लग जाए काबिले तारीफ, अली लग जाए काबिले तारीफ, मुआविया लग जाए काबिले तारीफ, बिलाल लग जाए काबिले तारीफ। नाना बाबा अबू बकर पहले कोई जानता नहीं, सिद्दीक अकबर बनता है, उमर को कोई जानता नहीं, आका से पहले कोई जानता नहीं, हत्ता
हैं, ए उमर तुझे तो जानवर चलाना नहीं आते, लेकिन आका की निस्बत में आते हैं, आका के साथ ताल्लुक होता है, तो 64 लाख कई जगह पर हुकूमत करते हुए नजर आते हैं, उस्मान जुन्नुरैन बनते हुए नजर आते हैं, अली हैदर कर्रार बनते हुए नजर आते हैं, मुआविया सियासत का इमाम बनते हुए नजर आते हैं, हजरत बिलाल काबे की छत पे चढ़ते हुए नजर आते हैं। पहले जानता कोई नहीं, बाद में अल्लाह ने मेरे आका के साथ जो लगा उसको भी काबिले तारीफ बना दिया। मुख्तसर करता करता हजरत अबू बकर सिद्दीक आका के साथ लगे। मैं उन्वाने वफा लिखदा, मैं को सिद्दीक याद आंदे, वफा दी इंतहा लिखदा, मैं को सिद्दीक याद आंदे, सफर होवे हदर होवे नबी दे नाल हर वेले जदा कोई दूसरा लिखदा, मैं को सिद्दीक याद आंदे, सदाकत विच, अमानत विच, दयानत विच, शराफत विच, नबी दी हर अदा अंदर मैं को सिद्दीक याद आंदे, मैनू मैं को सिद्दीक याद आंदे। कोई मुनकर ज़कातां दा, कोई मुनकर ज़कातां दा, कोई बागी नबुव्वत दा, मैं काफिर दी कज़ा लिखदा, मैं को सिद्दीक याद आंदा है। देखिएगा अली नू आखो, अली नू आखो बारात घिन्ना बे मेरे महबूब दे दर ते। इख्तिलाफात देखिएगा, अली नू आखो बारात घिन्ना वे मेरे महबूब दे दर ते, मैं सहरा दा निकाह लिखदा, मैं को सिद्दीक याद आंदा है। हजरत हुसैन के बारे में हुक्म हुआ, सर मुबारक था सजदे अंदर, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे कर फर्ज अपना अदा रहे थे। माहौल ऐसे में मुस्कुरा के हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे चढ़ के ज़माने भर को बता रहे थे, क्या मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत, बोलिएगा आखिरी शेर पर, मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी का महशर में चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।